Hey guys, welcome back to our channel. So let's start the weekly analysis. We'll cover Nifty, Bank Nifty, Sensex, and probably we'll take a look at some stocks as well. Okay. So first, I'll look at Nifty. What do I see in Nifty? मुझे clear cut दिख रहा है कि यहाँ पे एक bearish engulfing है, because this candle's opening is higher than this candle's closing, and this candle's close is lower than this candle's open. Okay, the previous candles. Okay, so weekly time frame, what can a bias be? Our bias can't be bullish at all, okay, because we have got a bearish engulfing here. And on the weekly time frame, where is the support for us? We have a small support at 23,263. So currently market is trading inside this box. Okay, we have to get outside this box now in Nifty. Most likely this will happen on the downside. Let's actually see how and what can we do to capture the move. Okay, so basically in the daily time frame, since when am I knowing probably that the market is going to go down, very simple, I'll actually draw that for you. Okay, so it's a higher high मतलब bullish, तो यहाँ पे bearish नहीं हो सकता आपके लिए price. Okay, after that price has gone down, come up and made a new low here. ठीक है, so lower low लग गया है यहाँ पे. So this is my first indication that the price may not come up now, okay, because lower low is very bad. Okay, if you studied Dow theory, higher high में ही bullish खेलना है, lower low में bearish खेलना है. So this move probably was an easy move downside का, but where was the trick? Okay, the tricky part was जब ये W बना है, ठीक है, so W पे again you get a higher high. You can't be short, okay, in my opinion. Lot of people will tell you कि वहां पे short करना चाहिए. I don't feel so. एक ही logic है for shorting. I can just share it with you. कि ये gap fill हो गया ना, तो that you have to wait one day. So I'll give you another example. आप ये दोनों candles को भी देखो. There was a gap here. Gap से it went up, just filled the gap and continued the up move. Similarly, if it had to come down, it's probably filling the gap and coming down now. Okay, price action के हिसाब से. Now speaking about the daily candles, इसमें थोड़ा wick आ रहा है नीचे में. So wick ऐसा full bears का control है वैसे I can't say. Okay, like for example ऐसी candle नहीं है ये. Cool. So I would like to see कि how does Nifty react at 23,263. If the market closes below this 23,263, in my opinion it will be a lower low, and lower low मतलब अपने को long term bearish सोचना पड़ेगा फिर थोड़ा, ठीक है, then things can come down very quickly in Nifty. So I'm curious actually, हमको daily candle close चाहिए, ठीक है, Nifty में. I'm very clear about that. ये इंट्राडे में गया तो नॉट दैट, बिकॉज यहाँ पे देखो इंट्राडे में कितने बार इट्स ट्राइंग टू गो डाउन, बट विक्स आ रही है उसमें, तो ये विक्स नहीं रहनी चाहिए. विक्स मतलब WICK है, इट्स नॉट VIX. ओके, नाउ एनीवन टेल्स यू ओके टू प्ले बुलिश, नाउ बी वेरी क्लियर कट कि बुलिश कब तक नहीं खेल सकते. वेरी सिंपल, ये जो गैप के ऊपर जब तक हम जाके वापस क्लोज ना कर देना, सी सिंपल, वी हैव कम डाउन, मेड अ हाई, कम डाउन अगेन, वी नीड टू मेक अ हायर हाई. सो दिस हाई हैज टू बी टेकन आउट. After this high is taken out, we can start with all the bullish biases again. तब तक के लिए I would not be interested in playing aggressively bullish at least. अभी कल मार्केट ऊपर जाएगा अगर, अभी तो एज ऑफ नाउ मार्केट इज डाउन, डाउ वगैरह, बट अगर नेक्स्ट वीक में रिकवरी आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आई हैव नॉट कैप्चर्ड दैट मूव. आई एम जस्ट टेलिंग यू लॉन्ग टर्म बायस अपना नीचे का रहना चाहिए, अनलेस दिस recent high swing high is taken out. ठीक है, now all things we have to talk about bearish only till then. So if you want to go long in this stock, okay, stock or Nifty, when are you going to go long? Minimum wait for previous day's high to be cut, okay, because once this is cut we can probably come to the previous resistance. ये मैं upside का bias लेके बोल रहा हूँ, अगर upside पे गया तो ठीक है. So even if I initiate a long here, अभी हाँ, the candle only should not form here, हाँ, मतलब यहाँ पे resistance पे वो candle नहीं आनी चाहिए, ठीक है. सो अबव दिस लेवल, रेजिस्टेंस लेवल ऑफ 23,600, 23,600 के ऊपर आई कैन एक्सपेक्ट निफ्टी टू कम अप एटलीस्ट 200 पॉइंट्स टिल 23,800 का लेवल. ओके, अभी वो अनलाइकली सिनेरियो है, बट हुआ तो वील लाइक ट्रेडेड दैट वे. नाउ टिल
what are you going to do if the market goes down and breaks the current day low? Okay, so whenever the market breaks the previous day's low, you have to be in a short position, especially lower low जब daily chart पे लग गया है ना अपना, तो उसके बाद तो अपना short के सारे trades लेने चाहिए अपने को, भले ही वो चले ना चले. Okay, that's another thing. It's much better actually than taking bullish trades. Okay, so because I won't be making another video tomorrow or day after, I'll give you my basic plan. So close below this support zone. Okay, I'm going to go short then. Already we have sold calls only, but if the market closes below this, I'll continue my short and I'll trail it with the current day high SL. जो भी high होगा वो SL से I'll trail my position. सिर्फ अगर ये ब्रेकडाउन होने के बाद अगर उसके ऊपर जाके क्लोज करता है तब ही बुलिश खेल सकता हूं मैं, वो भी थोड़ा सा, नॉट अ लॉट. ओके, तो आई विल शो यू इन बैंक निफ्टी चार्ट ऑल्सो, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा ये मेरे हिसाब से. अभी जिन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया है ना उनके लिए चांदी चांदी है अभी, क्योंकि मार्केट बेसिकली फ्रॉम इट्स प्रीवियस हाई हैज फॉलन डाउन 11%. ठीक है, सो 11% इज प्रीटी गुड टू इन्वेस्ट. आप अगर और भी कंजर्वेटिव हो मेरे हिसाब से 15% के लिए रुक जाओ आप. अगर कंजर्वेटिव हो, अपॉर्चुनिटी निकली तो निकलने दो, बिकॉज सी कंटिन्यूसली मार्केट इज गोइंग अप, कभी ना कभी इट विल फॉल 20-30%. तो आई वुड नॉट वांट यू गाइस टू बी स्टक इन दैट. तो यहां से 15% नीचे कहां पे आता है, अप्रोक्सीमेटली 22,400 पकड़ लो, 22,400. तो दिस कैन बी अ गुड लेवल फॉर यू टू स्टार्ट initiating a buy if you're a conservative trader. If you're aggressive, probably from now on you can start buying in small quantities. ठीक है, so simple trading में only go bullish above the previous day's high, and that too for a very small target, not long term bullish, okay, at all, unless we close above this recent high of 24,200. ठीक है, तब तक के लिए we'll miss the move, but it's okay, मतलब क्योंकि वहां पे उसके ऊपर जब जाएगा मार्केट तब probability बहुत हाई होगी कि उसके ऊपर जाने की. फिर एज ऑफ नाउ देखो ना, ये नीचे में कहां पे भी इफ आई टेल यू बुलिश, जब ये स्टॉक लोअर लो लगा रहा है उसके बाद, तो बुलिश मूव पे जीतने की प्रोबेबिलिटी इज वेरी लो, राइट? सो सेम थिंग, सो वील हैव हायर चांस अबव दिस हाई. ओके, नेक्स्ट आई एम चेकिंग बैंक निफ्टी. तो बैंक निफ्टी इज द बेस्ट चार्ट ऑफ ऑल टू शॉर्ट. ओके, सबसे बेस्ट चार्ट दिख रहा है शॉर्टिंग के लिए. दिस इज अ पिक्चर परफेक्ट ब्रेकडाउन, इससे बेटर ब्रेकडाउन मिलेगा नहीं. सो बैंक निफ्टी में नाउ बी वेरी क्लियर. ओके, निफ्टी, अगर निफ्टी का चार्ट थोड़ा अलग है, बैंक निफ्टी में आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली, डोंट प्ले बुलिश एट ऑल इन बैंक निफ्टी अनलेस वीकली कैंडल क्लोज यू गेट अप 51,000. 51,000 के ऊपर वीकली कैंडल क्लोज. ओके, वो निकल गया तो निकल जाने दो, पर हायर टाइम फ्रेम पे दिस इज वेरी बैड नाउ इन बैंक निफ्टी, बिकॉज ये जो कंसोलिडेशन है रेक्टेंगल का, हमको चाहिए था ये ऊपर में तोड़ दिए. ठीक है, अभी ये नीचे में तोड़ दिया है. ओके, तो नाउ ये रेक्टेंगल का जो लेंथ है दैट कैन कम नाउ, जैसे कि 4,000 पॉइंट है ना, इट कैन इजीली फॉल 4,000 पॉइंट्स. मतलब अभी ब्रेकडाउन लेवल से भी 4,000 पॉइंट देखो तो मैं, ये इलेक्शन कैंडल डे का जो लो है ना, ये इट कैन कम टू टेस्ट दैट 46,000 लेवल, आपको इजीली दिख सकता है बैंक निफ्टी में. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू बी वेरी cautious, okay, in bank nifty and go bullish only above the last week's high, that too on a closing basis on the weekly time frame. मतलब फ्राइडे को 3/15 को अगर आपको क्लोजिंग दिखती है 51,000 के ऊपर, तब ही बुलिश सोचना, नहीं तो कोई सोचना मत. नाउ अगर ट्रेडिंग के हिसाब से इफ यू वांट टू इनिशिएट अ फ्रेश शॉर्ट इन बैंक निफ्टी, व्हेन वुड बी द बेस्ट टाइम? whenever market comes near 49,600. now why? Old viewers of this channel, okay, they'll know. Very simple, this is a support and a breakdown now here. ठीक है, so whenever we get a breakdown there has to be a retest naturally. So 49,600 के वहां पे if the market comes there, look for shorting opportunities, not long. And weekly time frame पे आपको मैं daily पे बता देता हूँ बस कि weekly time frame पे we wanted 51,000 के ऊपर. Why this level is important? Because ये एक lower low लगा दिया है यहाँ पे, इसके बाद कोई बुलिश नहीं रहना चाहिए यहाँ पे. ऑल डे यू हैव टू से बेसिकली कम, सेल कॉल्स, गो होम, सेल कॉल्स, गो होम सॉर्ट ऑफ ट्रेड्स यू हैव टू डू. ठीक है, सो आई टोल्ड यू व्हेन टू प्ले बुलिश. नाउ बेरिश, आई टोल्ड यू यू कैन ईदर प्ले एट अ रीटेस्ट, ओके, और ऑन अ गैप डाउन. नो, आई वुड नॉट बी इंटरेस्टेड एक्चुअली गैप डाउन पे शॉर्ट करने को, बिकॉज सी 3-4 डेज से, सो मेनी डेज से एक्चुअली मार्केट इज फॉलिंग.
एंड यहाँ पे हमको दिख रहा है कि डाउ इज डाउन 600 पॉइंट्स। सब लोग जो भी डाउ देखने वाले उनका माइंड इज गोना बी वेरी बेरिश टुमारो। तो इतने सेल ऑफ के बाद अगर गैप डाउन खुलता है ना, यूजुअली इट्स नॉट अ गुड साइन। ओके, गैप अप एक्चुअली वुड बी अ गुड सिनेरियो फॉर शॉर्टिंग आफ्टर अ ब्रेकडाउन, ठीक है, क्योंकि गैप डाउन में सबको प्रॉफिट हो चुका है। तो व्हाट दे डू, थोड़ा सा भी मार्केट रिवर्स हो गया ना, सब काटेंगे और फिर ये प्रीवियस डेज लो को तो टेस्ट करने को इजीली आता है जब भी, ठीक है। एंड दिस कैन प्रोबेबली, इफ द गैप डाउन इज नॉट टू बिग, इट कैन, इफ इट स्टार्ट्स टू ब्रेक द फर्स्ट 15 मिनट कैंडल हाई, वहां से यू कैन एक्सपेक्ट अ रीटेस्ट ऑल्सो ऑफ दिस जोन 49600 का जो जोन है हमारा। कूल। और अगर फ्लैट खुल रहा है ये, तो फ्लैट खुल रहा है, ब्रेकडाउन है, सिंपल, वेरी सिंपल, प्रीवियस डेज लो के नीचे यू हैव टू गो शॉर्ट अगेन हियर। ओके, बेसिक गेम प्लान है ये हमारा। एंड कभी भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है ना, उसके ऑपोजिट साइड पे नेवर ट्राई टू मेस विद द मार्केट, इट विल स्क्रू यू बैडली। मैंने ज्यादातर लोगों के लॉसेस देखे, जैसे ऑल टाइम हाई टूटता है ना फॉर एग्जांपल, टूटने के बाद वो लोग कॉल सेल करते हैं जैसे स्ट्रेंगल में, एंड दैट कॉल विल प्रोबब्ली बिकम 10x very quickly and then they'll book very big losses. So same thing we don't want to happen in puts. Okay, so be very cautious in bank nifty. अब सेंसेक्स में आते हैं, सेंसेक्स का वीकली टाइम फ्रेम पे we've come. Okay, so weekly time frame doesn't seem that bad here. It is bad in the sense that ये लोअर लो ही बना रहा है, मतलब यहाँ पे अभी हमको देखना है सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग देता है कि अगले वीक में कि नहीं। अगर ये क्लोजिंग दे देता है, निफ्टी भी दे देता है, बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी दी है, तो आप समझ जाओ कि मतलब बहुत नीचे जाएगा फिर, क्योंकि सारे इंडाइसेस साथ में ब्रेकडाउन देते हैं, तो इट्स वेरी पावरफुल। इफ दे ब्रेकआउट टुगेदर ऑल्सो इट्स वेरी पावरफुल। तो आई वुड, इफ द ब्रेकडाउन हैपेंस, आई वुड लुक फॉर दिस इलेक्शन डे लो टू बी टेस्टेड देन आफ्टर दैट। ओके, एंड नाउ सेम इन सेंसेक्स। ओके, आपको वीकली टाइम फ्रेम पे बुलिश यू कैन ओनली बिकम दिस रेक्टेंगल का हाई, छोटा रेक्टेंगल है ना यहाँ पे, इसके हाई के ऊपर we'll probably get a W also and we'll get a higher high also. So only above this level of 82,400, 82,400 का लेवल है, उसके उसके नीचे तक तो मतलब लॉन्ग टर्म का बुलिश बात ही मत करो मेरे हिसाब से। अभी मुझे ट्रोल करने को व्हाट विल हैपन, कभी कभी बॉटम बन जाएगा एंड देन यू गाइस विल ट्रोल मी, बट ठीक है, एज पर द एनालिसिस आई एम गिविंग यू वेरी एक्यूरेट प्लान, आई थिंक सो। तो एचडीएफसी बैंक में ऑल टाइम है ब्रेकआउट पे, मल्टी ईयर ब्रेकआउट पे यूजुअली इट्स अ गुड आइडिया टू गो लॉन्ग, बट दिस ब्रेकआउट कैंडल लो शुड बी प्रोटेक्टेड। सो इन दिस केस 1775 के नीचे प्रॉब्ली यू हैव टू कट द ट्रेड, सो दैट्स अ फेल्ड ट्रेड ऑन द अपसाइड, बेसिकली ब्रेकआउट फेलियर हो चुका है। सी आफ्टर ट्रैपिंग दोस लॉन्ग पीपल इट्स कमिंग डाउन सो क्विकली, इनको तंग करने के लिए बहुत क्विक आता है मार्केट फिर। तो मेरे हिसाब से इफ यू आर थिंकिंग ऑफ गोइंग लॉन्ग ईयर, फॉरगेट अबाउट इट फॉर सम टाइम। नीचे आया जब हायर हाई वगैरह छोटा रेंज कुछ बनाएगा तब विल सी प्रोबेबली। ओके, बिटकॉइन पे व्हाट डिड वी टॉक अबाउट, वी स्पोक अबाउट बिटकॉइन बीइंग लॉन्ग हियर, निकिता का कवर्ड इट वेरी वेल, एंड ये पोल एंड फ्लैग का टारगेट आल्सो शी गॉट ओके हियर, एंड वी आल्सो टोल्ड यू कि अगर पोजीशन है यू हैव टू गेट आउट, बिकॉज ये वन वे ऊपर गया है, तो वन वे अप इज नॉट अ गुड थिंग। एंड व्हेनेवर अ ब्रेकआउट हैपन, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है, do not be fearful कि वो प्राइस आएगा नहीं, most of the time ना that price will come and retest this level। तो मेरे हिसाब से you can see Bitcoin come to 76,000 also in the future, पता नहीं कब आएगा, 76,000 can come though, and that can be a good buying opportunity if you are interested in buying here। You remember Adani में I was covering, so I told you when do you short here as a trader, whenever it tries to retest here, so ओके, सो ये जोन के हिसाब से यहीं से तो नहीं रिवर्स हो रहा है वो, है ना। सो दिस इज सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस, ब्रेकडाउन ऑफ अ सपोर्ट, मार्केट गोइंग अप, इट विल एग्जैक्टली टच देयर एंड स्टार्ट कमिंग डाउन अगेन। तो ये मेरे लिए परफेक्ट कैंडिडेट है शॉर्ट करने के लिए वापस। ओके, अडानी का ऑल्सो आई एम जस्ट लाइक बेसिकली टेकिंग यू थ्रू ऑल द पिक्स ऑफ द स्टॉक्स, एंड दिस इज नॉट अ एडवाइस फॉर यू, आई एम जस्ट लाइक कवरिंग इट। So when market falls down, gold is like going up. It's very good for us because we are long in gold also. ठीक है, सो इसने बेसिकली रीटेस्ट किया है, अभी ऊपर जा रहा है, अभी ऑल टाइम हाई के ऊपर जब क्लोजिंग मिलेगी हमको, दैट्स अ फैंटास्टिक टाइम एक्चुअली, देन और भी बेट कर सकते हैं कि ऊपर जाएगा फिर गोल्ड। ओके, मेरे हिसाब से व्हाट यू गाइस इन एडिशन टू ऑल दिस नो, दिस इज बेसिकली एंट्री एग्जिट के लिए, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस।
Now where you guys should focus on, which even I am doing more of, okay, that's why we're taking a small break. आपने जहां जहां मिस्टेक्स किए ना आपके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये कैंडल आया है, इस कैंडल के बाद आपने लॉस किया, जैसे फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी में किया, ओके, नाउ फिगर आउट व्हाट यू डिड, ओके, व्हाई यू मेड दैट लॉस एंड व्हाट कुड यू हैव डन टू बिकम प्रॉफिटेबल ऑन दैट पर्टिकुलर डे. ठीक है, सो जर्नल क्वाइट अ लॉट, आई एम टेलिंग यू जी, बहुत लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं इसको. जर्नल करो, आपकी गलतियां दिखेंगे आपको. तो बेसिकली इफ यू टेक केयर ऑफ द बैड डेज, नो द गुड विल ऑटोमेटिकली टेक केयर ऑफ इटसेल्फ. तो अपने को बहुत बैड डेज नहीं चाहिए बेसिकली. तो ट्राई टू जर्नल मोर एंड बैक टेस्ट करो. और आई चार्ट्स मेरा फेवरेट है, स्टॉक्सरन इज वेरी गुड, स्टॉकमॉक ऑल्सो इज वेरी गुड. आई चार्ट्स एंड स्टॉक्सरन का कॉम्बो आई थिंक वुड बी एक्सेप्शनल टू बैक टेस्ट ऑल्सो. ठीक है, I have not tried all those algo test and all. I don't know if that price के हिसाब से back testing possible है कि नहीं उनमें. So that's why I don't do it. But I would suggest back test more because काफी लोग अभी क्या करते हैं, लोगों के returns कम हो गए हैं, so and they are dependent on this trading income. जैसे मैं मेरा केस अगर बताऊं ना, मेरे पेरेंट्स डॉक्टर्स है, सो आई एक्चुअली डोंट केयर, मतलब मैं बनाऊं ना, मेरे पे वैसा कोई स्ट्रेस नहीं रहता है. बट मेरे काफी फ्रेंड्स है who depend on this trading income to live, okay? So for them, either you start exploring cash markets also and work on options simultaneously, और वो जितना भी work you were doing earlier उससे तो काफी ज्यादा डालना पड़ेगा आपको. Because see, what if you know the market doesn't change, then what are you going to do in the next 2 years? Think of it that way. कुछ एक रिप्लाई चाहिए ना आपकी तरफ से, तो मेरे हिसाब से you have to do 10x harder work now पहले से. Okay, so basically tabulate all your mistakes, journal करो, back testing ज़्यादा करो, and also learn like some cash market investing also. Because market is coming down, 10% गिरा है हाई से, बहुत अच्छा है. अगर 20-30 गिर गया तो मतलब आपकी लॉटरी है if you're not invested. ठीक है, because then that would be a very good time to enter and then the market should shoot up logically. So learn all those things so when they actually happen, you can do something about it. ठीक है. So if any queries, type them below this video. I promise to reply you. मैं आपको एक text wise reply कर दूंगा उसमें YouTube के ऐप से. Okay. So that's it for this video. If I missed anything, let me know. I'll cover it in the next week's video. Okay. See you. Bye bye.